ایک بندہ ہے یا احمدی، اس کے لیے نارملائز کریں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اوکے ٹو سے سم تھنگ کہ آپ کہہ دو یار انہوں نے بھی کیا تھا تو ان کا کیا جواب ملا آپ کو، اس کا کوئی جواب نہیں ملا تو ہم کیوں جواب نہیں ملے. اصل میں یہ الزامی جواب ہی ہے نا بیسیکلی. تو ادھر میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اس طرح کے لوگ، طلعت صاحب جیسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں اس طرح کا پیدا ہو، تو وہ ذرا اپنی آواز بھی اٹھائیں، کیونکہ ان کو 10 لوگ اور بھی سن رہے ہیں، ان کی اپنی براڈز ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس چیز کو ذرا اس چیز کا پتہ کریں کہ اس کی آگے کوئی گئی ہے خلیفہ وقت تک رپورٹ، کیونکہ ان کی زیادہ آ جانی چاہیے آواز، بیکاز ان کو 10 لوگ سن تو رہے ہیں. ہماری آواز سن کے کہیں گے کہ بھائی یہ تو ان کا دماغ گھما ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو ابھی بھی منسلک ہیں بالکل دل کے ساتھ، ان کو ذرا کھل کے کرنی چاہیے کمپلین، اور پھر ہمیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اوکے کیا کرنا ہے اس کے بعد. کیونکہ یہ بہت نارمل ہے، میں نے بھی سنا ہے کافی جگہ، ہر جگہ جو ہمیں جواب نہیں ہوتا ہے یہ الزامی جواب دیا جاتا ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو بس یہی میں کہنا چاہتا تھا. باقی تو ٹاپک دوسرا چل گیا تھا ساتھ ہی خارے والا. تو ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں نیچے ایک عرفان جٹ کر کے نام کی آئی ڈی ہے، اس نے اچھا، جی میں نا تھوڑا نیچے اترا تھا گاڑی سے، میں نے دونوں کی باتیں سنی ہیں. یوسفی بھائی نے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بات کی ہے اور دل مو لیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر کے بارے میں مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا استخارہ کرنا چاہتے ہیں سراج منیر کے بارے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج قرار دیا ہے. ان کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، کیا ان کے بعد اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو سچا مانے کہ جھوٹا مانے. توف ہے آپ کی سوچ پر، آپ کی عقل پر. میں نے کہہ دیا سویرے ان کو دہرا کے، مربی صاحب جتنی بڑی آپ نے قسم کھائی ہے نا، اس سے بڑی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو یقین کے ساتھ جھوٹا مانتا ہوں. کیوں؟ کتاب و سنت کی تعلیمات کا لازمہ ہے، یہ شیخ بٹالوی کے الفاظ ہیں. کتاب و سنت کی تعلیمات کا لازمہ ہے کہ مرزا صاحب کو جھوٹا جانا جائے. اگر مرزا صاحب کو سچا مانے تو کتاب و سنت کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے. کتاب و سنت تو بھرا پڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کے حتمی ہونے پر کہ اب کوئی تعلیم آسمان سے نہیں آئے گی. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے خدا نے یہ تعلیم دے کے بھیجا اور کہا لوگوں کو یہ تعلیم دو. کامل اکمل شریعت آ گئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد کون سی تعلیم آپ نے ہمیں دینی ہے؟ یہ بتانا کہ خدا کا ایک نام یہ لاش بھی ہے. ہمیں وہی کافی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا نام ایک اللہ ہے، ایک رحمان ہے. یہ اللہ کے حقیقی نام ہے. ہمیں وہی کافی ہے. کیا بتانا ہے آپ نے ہمیں؟ کون سی تعلیم آپ نے ہمیں دینی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا، خود مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت عمر نے کہا تھا نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے، خبردار کسی نے کہا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی علیہ السلام ایسے ہی آسمان پر چلے گئے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. مرزا صاحب نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے ہیں آسمان پر. صحابہ کا عقیدہ ہے یہ. مرزا صاحب آپ نے کون سی ہمیں نئی تعلیم دینی ہے؟ جب قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ذلی بروزی قسم کی جائز ہے. ذلی بروزی غیر حقیقی، غیر مستقل، ہاں جی نبوت ناقصہ والی نبوت میں لے کر آیا ہوں، یہ مان لو. ہم آپ کو جھوٹا مانتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث نے کہا ہے کہ نبی کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا بن کے. نبی علیہ السلام کے بعد کذاب نے آنا، کذابوں نے 30 کذاب. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 کے قریب بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی، سارے کہیں گے کہ ہم نبی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ ذلی کا دعویٰ کریں، بروزی کا دعویٰ کریں، غیر حقیقی کا دعویٰ کریں، حقیقی کا دعویٰ کریں، غیر تشریح کا کریں، تشریح کا کریں، ہم آپ کو جھوٹا ہی کہیں گے، کیونکہ ہم کتاب و سنت کو سچا کہتے ہیں. ہم آپ کو سچا کہیں تو کتاب و سنت کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے نا. ہم کیڑے کھوج ڈب کے مر جائیں، ہم آپ کو کس منہ سے سچا کہیں؟ کس منہ سے آپ کے لیے استخارہ کوئی کرے؟ کتاب و سنت پر شک کر کے استخارے کرنا نا
کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی یہ ساری تعلیمات معاذ اللہ جھوٹی ہوں، تو کر لے جس نے کرنا ہے استخارہ۔ ہم تو نہیں سمجھتے استخارے کی ضرورت، جس طرح یوسفی بھائی نے کہا کہ سورج چڑھے ہوئے کے لیے کوئی استخارہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری رہنمائی کر، سورج چڑھے ہے کہ نہیں چڑھے ہے، تو اپنا اکھاں چندے آن لگیاں نے تو تسی استخارہ کرن لگے ہو۔ محکم باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے کئی مدعیان نبوت پہلے آئے بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ مرزا صاحب پہلے آئے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، کئی لوگوں نے، وہ مختار سقفی نے دعویٰ کیا، بعد میں کئی لوگوں نے دعوے کیے ہیں، ابھی مرزا صاحب کے بعد لوگوں نے دعوے کیے ہیں۔ اسد شاہ دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں اس کا دماغ میں خلل واقع ہو گیا۔ دعوے لوگ کر نہیں رہے ابھی بھی نبوت کے، جھوٹے دعوے لوگوں نے کیے ہیں۔ ہم سب کو ایک جیسے جھوٹا مانتے ہیں، کیوں؟ ہم قرآن اور حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات جو یہ اوپن بھائی نے کی ہے کہ بھئی جماعت نے کیا ایکشن لیا ہے، ابھی بھی آپ کو جماعت پر حسن ظن ہے تو اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، بڑے بھولے اور بڑے سادے ہیں آپ کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جماعت ایکشن لے گی۔ بھائی جماعت کی تعلیم ہے کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو پھر سب کچھ جھوٹ ہے، سارا کچھ جھوٹ ہے، سارا اسلام جھوٹا، سارے نبی جھوٹے، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی اسمان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی یوم آخرت نہیں، ککھ نہیں، قیامت کوئی نہیں، سب کچھ کو وہ جھوٹ کہنے۔ اور ایک لڑکا ہے ملیشیا ہوتا ہے، انہوں نے ان کی براڈ پہ آ کے کہا، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنی یوٹیوب پہ، اس نے کہا کہ ہزاروں لڑکے ہیں میرے عمر کے جو یہی سوچتے ہیں جو میں سوچتا ہوں، اور اس نے بتائے اپنے خیالات، ان کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ اس نے کہا مرزا صاحب کو تو ہم جھوٹا دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی پچھلا نبی بھی سچا نہیں دکھائی دیتا۔ کیوں؟ بچپن سے یہ ذہن میں ڈالا گیا کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو پھر کوئی نبی سچا نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم جماعت کی ہے محترم، جماعت کیوں منع کرے گی؟ گالیاں نہ دو، جماعت کی لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب یہودیوں کی عبارتیں دہرا کے عیسائیوں کا دل جلاتے تھے، عیسائیوں کا منہ بند کرتے تھے، اور خود لکھتے ہیں کہ میں یہودیوں کی عبارتیں دہرا رہا ہوں، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو یہی بات یہ کر رہے ہیں، یہ کون سا اپنے منہ سے کہتے ہیں تواڈے نبی دی ماں بہن، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں عیسائی کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، فلاں ہندو کہتا ہے، فلاں سکھ کہتا ہے، کبھی گل سنگھ کا نام، کبھی فلانے کا نام، دوسروں کا نام لے کے یہ بات تو مرزا صاحب کی تعلیم ہی دہرا رہے ہیں۔ جماعت نے کیا، خلیفہ نے کیا کرنا ہے؟ یہ طلعت صاحب جنہوں نے ابھی کہا نا آپ کے سامنے کہ میں نے سخت مذمت کی ہے، انہوں نے مذمت کرنے کے بعد اس چھوٹے کو اپنے ساتھ اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ جو چھوٹا ہے نا راجپال کی کتاب پڑھنے والا، وہ تو ان کا دستے راست ہے، وہ ان کی ہاں میں لاتا ہے، بھائی بھائی کہتا ہے۔ وہ جو بڑا ہے وہ باغی ہے ان سے۔ اصل پرابلم یہ ہے ان کی اور وہ بڑے کی، سلیم میر کی اور طلعت ظہور ملک صاحب کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا، کیونکہ یہ تو تعلیمی جو بیس ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم نبی پاک کی توہین جواباً کر سکتے ہیں، اگر کوئی مرزا صاحب کی کرے ہم دوسروں کا نام لے کر نبی پاک کی توہین کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نہ جماعت نے کچھ کرنا ہے، نہ کسی خلیفہ نے کچھ کرنا ہے، اس جماعت میں یہی کچھ ہے، اس سے نکلیں گے، واپس اسلام میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھنڈی چھاؤں میں لے آئے گا۔ یہاں پر تندور جل رہا ہے گستاخیوں کا، جھوٹے دعووں کا، لالچ کا، کچھ نہ پوچھیں جو کچھ یہاں پر اندر اندر ہو رہا ہے۔ جو فائزہ بی بی نے کہا ہے نا، بس وہ سن لیں کان لگا کے، جی کریں بات جس نے کرنے ہیں۔ وقاص صاحب سناؤ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سب اس بتائیں بات کیسے کو ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود نے بھی دہرائی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک بھی کرنی پڑے ہم وہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ مطلب کہ نبی کے حد تک کرنا جو ہے وہ اپنی بات بتانے کے لیے وہ یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ صاف لکھا ہوا، مرزا صاحب صاف کی بھی کھلے بات ہے، انہی لفظوں میں، ہاں جی بالکل انہی لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز سے میری بات ہونے لگی، میں نے اس کو کہا کہ تم نبی پاک کے خلاف نہ بولنا، اگر تم بولو گے تو میں سیدھا عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دوں گا، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے نبی پاک کی ذات پر حملہ کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر حملہ کر دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، 2-3 باتیں اس نے کی، اس کے بعد اس نے نبی پاک کی ذات کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حملہ ان پہ کر دیا، انگریز دوڑ گیا۔ یہ صاف لکھا ہوا، ان کے یہاں یہ جائز ہے۔
कि मिर्ज़ा साहब भी तो वो कहते हैं कि ऐसे ही नबी है ना जिस तरह पहले नबी, तो एक नबी की मोहब्बत में या उसकी तौहीन को बचाने के लिए दूसरे सारे नबियों को गालियां दी जा सकती हैं। जी वकास साहब को बात कर लेने दें सराइल भाई। नहीं वकास साहब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ हाँ मैं देखें वो जब बैठा होता है मैं नहीं जाता, वो बदतमीज है। वही वो ज़िया रसूल भाई भी बैठे हुए थे, बाकी और भी 2-3 बंदे बैठे हुए थे, तो फिर में शाकी की बात हुई है तो उन्होंने मंसूब कर दिया हज़रत दाऊद की तरफ, फिर हज़रत याकूब की तरफ अल्फाज इस्तेमाल किए तो मेरा भी टेम्पर लूज हो गया। माइक म्यूट करना थोड़ी बात साहब उर्दू में बात करनी है, अगर आपने बात करनी है ना तो उर्दू में कीजिएगा प्लीज। तो मैं फिर उनको बोला, मैंने कहा ये मैंने तो साहब ये उर्दू में बात कर लेते हैं, अगर कोई आपके पास उर्दू वाली टीचर है तो प्लीज़ बता दें। उर्दू वाले टीचर है कि जरूर है, अगर मैं उनका नाम लूँगा तो आपकी गालियाँ नहीं आप नाम ले हैं, आप नाम ले हैं। आमर साहब अस्सलाम वालेकुम। बात करना चाहते हैं तो मुझे आप चले जाएंगे। आमर साहब की हाल जे ठीक है सर। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵਕਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਗੇ ਉਹ ਮਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਵਕਾਸ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ओए हौसला ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰ। जो बात यार ये कि बराड़ का कानून है उर्दू च गल करनी। ਉਰਦੂ में करेंगे लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। उर्दू में करते हैं कोई बात नहीं। ये ना इधर एक टीचर आई थी नजर को पता नहीं है, वो मिस रूफो इनको उर्दू सिखा के गई है, सारे पैनल हमारे को ना वो इटली पर जो मैंने बात की है ना उसके बारे में बताओ, जो वकास ने गालियां दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बारे में बताओ। अब मुंह में दांत नहीं है तुम्हारे, बात करो, पूछ लेते हैं ना, साथ ले लेना। पूछो 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 भगवान ने गाला कटियां। माइक म्यूट तो करो ना, माइक म्यूट करो तो उनसे पूछेंगे, माइक म्यूट करोगे तो उनसे पूछेंगे जितना शोर हम कर रहे हैं, इस तरह बात हो सकती है यार। जी वकास साहब करें बात। जी ये बस इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। मैंने हमेशा इबारत पढ़ी है या अहादीस को पेश किया है, जो अहादीस पे कुछ ज़ईफ़ है या सही है, या फिर कुछ दूसरी सीरत की किताबें हैं, उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो पेश किए हैं। हाँ एक दफ़ा जो है वो मैंने कोई गाली नहीं निकाली थी, लेकिन एक नामुनासिब जिसे आप कह सकते हैं वो अल्फाज इस्तेमाल किया था उम्मे रुबाब की ब्रॉड पे, तो मैंने उसी की ब्रॉड पे जाके मैंने माजरत की थी सबसे ऑन एयर कि ये मेरे से गलती हुई थी। वो आप पूछ सकते हैं उनसे, शाह साहब भी मेरे ख्याल बैठे हुए थे, उम्मे रुबाब को भी पता है अच्छी तरह से, अली गज़ाली भी बैठा हुआ। बस उसके बाद कभी मैंने कोई ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया जो नाज़िबा हो। हाँ इबारत आपको पता है हम ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो सीरत की किताबें हों, चाहे वो अहादीस हों, चाहे वो तफसीर की किताबें हों। जी बस ये जवाब था मेरा। बाकी इसके अलावा अगर ये कहते हैं कि हमने कोई गाली दी है तो ये रिकॉर्डिंग लें, फिर उस पर बात हो सकती है। जी इरफान साहब आप अहादीस वगैरह का वो बाद में तारुफ करा लेंगे, रेल भाई उनको बात कर लेने दें। इरफान जट साहब करें बात। आमर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕੌਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ नहीं आ सकता फलाना है गल फलाना। मुफ्ती मुबशर साहब उर्दू में कर लें, आपका बहुत आता है जो आप उर्दू करते हैं, उर्दू में बात कर लें। मुफ्ती मुबशर की जब बात आई है तो उर्दू में कर लें। वो कह रहा है यहाँ से जाके पढ़ लो, यहाँ रंगीला रसूल पड़ी हुई है मुफ्त। वो अपने बंदों के बारे में बात करो, खाली मुंह उठा के लोगों के बारे में बात करते। ठीक है, म्यूट कर लें इरफान जट साहब। भाई बात यह है कि वो जो भगवान है उसने बिल्कुल, मैंने भी देखा, उसके बाद मैं उसके करीब नहीं गया, उसने शातमियत की है। वकास साहब का जहाँ तक मामला है उन्होंने खुद भी बयान किया और मैं खुद भी इसका गवाह हूँ कि इन्होंने नेओ साहब ने, वो आसफ़ चौधरी साहब ने, आसफ़ चौधरी उनका नाम, हाँ, इन्होंने सब ने हमारी ब्राड पे आके एक दिन जब रात को इनका पता नहीं किसके साथ मसला हुआ था, तो इन्होंने कुछ इबारतें ऐसी पढ़ी थी जो हमारी नज़र में दुरुस्त इबारतें नहीं हैं। बहुत सारी ज़ईफ़ और झूठी बातें इस्लामी लिटरेचर में लिखी हुई हैं, हम उनको ऑन नहीं करते, हम कहते हैं ये दुरुस्त बातें नहीं हैं, वो झूठी हैं। वो इन्होंने पढ़ी थी, उसकी इन्होंने आके माजरत की थी, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। आप मिर्ज़ाइयों में से आज तक किसने इस बात की माजरत की है कि सलीम मीर ने जो राजपाल की किताब पढ़ी है, हम बिल इजमा पूरी जमात माफ़ी चाहते हैं इसकी? आप में से किसने इमरान कालों की हरकत की माफ़ी मांगी है? अभी जो कल उसने दाऊद अलैहिस्सलाम को गालियां दी हैं, किसने माफी मांगी है? आप में से किसने माफी मांगी? आपको तो माफी की तौफीक ही नहीं है। आमर साहब माफी किससे मांगनी है? आपसे, जो आप खुद शाद में रसूल करते हो, किससे माफी मांगे? आपसे। आप सबसे बड़े, तो आपने कहा था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खेलते हैं, वो किसने शादमियत की थी? आमर साहब ने दसो लोगों को। आप मेरे पे इल्जाम लगाओ, ठीक है? हाँ तो इल्जाम है आप पे, बड़ा बड़ा इल्जाम है। आपने किससे माफी मांगी है? माफी मांगो सरेआम, आप माफी मांगो। इधर 60 बंदे बैठे हुए हैं, मैंने गलत बयान की थी जो मैं कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आओ खेलते हैं, माफी मांग। हाँ माफी मांग। वकास साहब को बात करना। जी वकास साहब। जी, और दूसरा, मैंने उनकी ब्रॉड पे मैंने एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दी थी और 12 बार मैं देता रहता हूँ ये स्टेटमेंट कि ना हमारा कोई ग्रुप है, ना हमारा कोई फ़िरका है, और ना मैं किसी दूसरे की सोच पे चलता हूँ, ना मैं किसी की सोच को ऑन करता हूँ। अगर भगवान करता है कोई बात ऐसी या उसके अलावा कोई और करता है तो मैं उसको ऑन नहीं करता और मैं उसको कंडेम करता हूँ। हालांकि हमारी ब्रॉड पे भी 2-3 बार इवन के मिर्ज़ा साहब की बात हो रही थी, हालांकि हम मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते, लेकिन मिर्ज़ा साहब के बारे में वो पोस्टर लगा हुआ था और बात हो रही थी, तो मैं गया हूँ ऊपर, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये ना लगाओ आप, अगर आप लगाओगे मैं नहीं बैठूँगा। तो मैं तो ख़ुद इन चीज़ों को जो है अब कंडेम करता हूँ कि नहीं, जो लोग बस जहाँ पर लगे हुए हैं वो आपस में जो है वो खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। आप दरमियान में क्यों आ रहे हो? आपका एक अपना नज़रिया है, उसको डिस्कस करते हैं। हम तो इल्म के मुतलाशी, हम तो इल्म की खोज में हैं, वो हमें जहाँ से मिलता है हम ले लेते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं अपनी बातों का खुद जिम्मेदार हूँ, किसी और की बातें ना मैं जो है वो ऑन करता हूँ और ना मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। अगर भगवान ने की है, हाँ मैं उसको कंडेम ज़रूर करूँगा कि अगर उसने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और मैं उससे बात भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर डालने की बात नहीं है कि वो जो भगवान ने किया है, वो बनी इसराइल ने जो है वो चूँकि उसके साथ बैठता है तो इसलिए ये बात जो है वो बनी इसराइल पे भी आती है। तो आपको ये बेहतर तरीके से पता है, लास्ट टाइम जब आमिर साहब हमारी बात हुई थी बड़ी डिटेल, क्या उसके बाद कोई ऐसी इबारत पढ़ी गई, क्या कोई ऐसी बात की गई? तो ये आपके सामने है। हम तो आते रहते, इधर भी बैठते, दूसरी ब्रॉड्स पे भी जाते हैं। अब भगवान कुछ कर रहा है। बनी इसराइल असल में जो है ना, वो बात गुस्ताही की नहीं है कि आपने किया या अमर भाई ने किया। असल में इसमें से अरफान भाई मिर्ज़ा साहब को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहे इनसे। प्रॉब्लम ये है, ये मसला। आसफ साहब अब गल हो रही है, मैं किसी को सच्चा नहीं कर रहा, मैं गल हटबाज नहीं कर रहा। ते आमर साहब उत्थे भी बोलो जिथे हम मुफ्ती मुबशर साहब थले आ रहे, चुको शादमत की है, तुसी आप शादमत की है, लेकिन दसो असी भी शादमत। जट साहब शुरू थले साल हो, ये तो साबित हो गया है कि मिर्जाइया ने राजपाल की किताब पढ़ी है। मिर्जा साहब ने तुसा भी पढ़ी है, तुसी दस दे हो, तुसी दस यार नीला पूजे तो जाके रौला नहीं पाईदा, आगे तो जाके पढ़ो, चीखा ना मार आमर, लेकिन दस रौला नहीं पाना, गल
उर्दू में बात खान साहब लिखा जाके तो पढ़ो, फ्री पढ़ी जाती है। उर्दू में बात करें। खान साहब उर्दू में बात करें, वो उर्दू में बात करें तो पता चले। एक तो बात उर्दू में करें, दूसरा चीखें न मारें। देखिए ना, बात तो आसिफ चौधरी साहब ने जो की है, असल कहानी तो ये है ना, अगर कोई बंदा और पढ़ता है किसी और वजह से तो देखा जाएगा बैकग्राउंड क्या है। आपकी बैकग्राउंड ये है कि आप मिर्जा साहब को बचाने के लिए नबी पाक की जात पर हमला करते हैं, ये है सारी कहानी सबके ना सामने। ना 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 अमर साहब गलत बयानी ना करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर है, लेकिन जो बात है मुफ्ती मुबशर ने गलत की है वो उसको कहो कि लोगों को बता रहा था इधर जाके फ्री पढ़ सकते हो रंगीला रसूल, और कुछ ख्याल कर एडी चिट्टी दाढ़ी अमर, कुछ ख्याल कर, मैंने गलत बयानी क्यों नहीं डिफेंड कर, क्यों कह रहे हैं यार अमर साहब क्यों नहीं कह रहे, अमर साहब क्यों नहीं कह रहे? मेरे पीछे शोर है बाकी यार उर्दू छड़ के पंजाबी बोलो, लेकिन लोगों दसो मुफ्ती मुबशर ने गुस्ताखी की है, लोगों को बताया है कि इधर से जाकर रंगीला रसूल पढ़ो, 60 बंदे बैठे हुए हैं, जो मर्जी कर लो, मेरी यही गल ही। मैं कह रहा हूँ उर्दू में बात करें। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मेरे पीछे शोर है, मैं आपको जवाब देता हूँ आके। असल कहानी ये है जज साहब कि आपके पीछे जी करें आप कोई बात कर रहे हैं सर? हाँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो असल कहानी है ना मोहतरम, वो ये है कि आप लोग मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए, जिस तरह इमरान कालू को ज़िया भाई ने कहा ना कि मैं रबवा का रासपुटीन खोलूँगा तो उसने कहा मैं राजपाल की किताब खोलूँगा। ये है अदले का बदला, क्योंकि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुफ्ती मुबशर ने कहा इधर से जाके पढ़ लो, नहीं मुफ्ती मुबशर ने क्यों लोगों को बताया था कि इधर से जाकर रंगीला रसूल पढ़ लो, फ्री पढ़ी जाती है, वो किसने बताना था? अस्सलाम वालेकुम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक है? फर्स्ट आपको बता दें, यहाँ ब्रॉडकास्ट रूल है, यहाँ पे उर्दू में बात करनी है और पंजाबी का वर्ड। जी मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। ये जट को उर्दू में क्या कहते हैं? जट को उर्दू में जट ही कहते हैं। जट एक कास्ट है पोस्ट, तो इस वजह से उनको जट कहा जाता है। असल में मिर्जा साहब कम अज कम 86-87 जो किताबें लिख गए ना, वो इन बेचारों से डिफेंड नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये बनी हुई है इरफान भाई साहब, आपका तो कुछ लेना देना नहीं हो, आप न 3 में 13 में आसफ साहब बंद करें, आपको किसने हक दिया कि बाबा करो? वो मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे आसिफ भाई आपने जो बात की है, वाकई ये बात तो है कि ये डिफेंसिव मोड में आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं मिर्जा साहब को डिफेंड कर सकते। अगर करना पड़े तो ये अक्सर औकात जब आप इनसे बात कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कुरान हदीस से बात। आप नजब साहब मुझसे बात कर लें, आप कुरान हदीस से कोड़ा और पंजा साबित कर दें, मैं आपसे बात करता हूँ, करो आप करो। कहाँ लिखा हुआ है शाम गरीबा? कुरान से निकाल के बताओ मुझे। घोड़ा कहाँ लिखा हुआ है कि मातम कर कर अपने सीने पीट लो? वहाँ कहाँ लिखा हुआ है? उर्दू में बात करें ना, क्या हो गया आपको? बताएं, शाम गरीबा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? जी बताएं, जी बताएं। सुने, देखिए हम ताजीमन करते हैं, हम अगर किसी घोड़े का एहतराम करते हैं तो उसको ताजीमन, उसका एहतराम, उसको सजाना, उसको बाजारों में दिखाना कि ये देखें ये एक जानवर हो के इसने वफा की। अगर मिर्जा साहब भी वफा करते तो मिर्जा साहब को भी सजा के बाजारों में लेके आते। मिर्जा साहब ने भी वफा नहीं की। देखें ठीक है, ये कुरान से साबित कर दें कि घोड़े का जूठा पानी पी लेते हैं और आपकी औरतें नीचे से गुजरती है, वो भी साबित कर दें। ये कौन सी गली में लिखा हुआ है? भाई ये कौन सा घोड़ा है जो औरतें नीचे से गुजारते हो? शाम गरीबा वाले बताओ, कुरान से बताओ। जालियत है ये, एक लानत और जालियत है, ये जालियत है, इसको जालियत कहते हैं। वो आप अकेले नहीं कह सकते, इधर बैठ के ब्राड पे बैठ के अकेले नहीं कह सकते, हजारों ना तेरी एक बंदे की तो बात ही नहीं है भाई साहब। आप साबित करें कि जो औरतें घोड़े से नहीं गुजार ना क्या कहते हो? उर्दू में बात करें ना, आपको उर्दू क्यों नहीं आ रही? प्लीज उर्दू में बात करें कि घोड़ा और पंजाब कुरान से साबित करें। बात सुने, देखें जट साहब,
अगर कुरान और यानी कि मैं आपको चीज कह रहा हूँ कि मैं घोड़े की ताजीम करता हूँ, तो उसने करबला में उन्होंने वफा की, ठीक है, वो साथ रहे, हम वफा कहाँ की? जब औरतें घोड़े के नीचे से गुजरती हैं वो और बच्चे घोड़े के नीचे से गुजारते हैं, वो वफा कहाँ गई? वो वफा है घोड़े के नीचे से गुजरना, उसे वफा कहते हैं? नहीं, वो आप कह रहे हो ना, एक बंदा कह रहा है। आसफ साहब आप चुप करें, कुछ नहीं आता आपको उर्दू भी नहीं आता सही तरह से। क्या बात बंद करें, अब बताएं जी, कुरान तो साबित करें पंजाब। डॉक्टर साहब उर्दू में बात करें और बारी बारी बात करें। आपके माइक में बहुत ज्यादा शोर है, जब आप माइक खोलते हैं तो दूसरों को कुछ समझ नहीं आती। आप क्या करें? आमिर साहब मुझे ये बता दें कि जो मुफ्ती मुबशर ने कहा था कि इधर से जाके पढ़ लें, रंगीला रसूल है, उसके आप मजम्मत करें इधर बैठ के। मैं बस ये एक ही बात है कि जो मुफ्ती मुबशर लोगों को बता रहे थे कि इधर जाके, यार बात तो करो ना, चुप करके सुनो, चीखे मार रहे हो, अपनी बारी बाबा कर रहे हो। दोगी ਤੁਹਾਡੀ यार। मुफ्ती साहब के लिए जगह बनाए, मैं नीचे मुफ्ती साहब आए हैं। मैं जगह बनाता हूँ। राजा जवेद साहब मौजूद है, अगर आप जाना चाहते हैं। मुझे नीचे उतार दे, मैं वैसे भी सुन रहा हूँ। जाओ में सारे इन्होंने थल्ले टोल जाओ, यार मुझे उतार दोगे? नहीं, मुझे उतार। राजा साहब क्या हाल है आपके? घर वाले ठीक ठाक है? यार इधर गाली बाज बैठे हुए सारे। यार वो मुफ्ती साहब के बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं, तो वो मुफ्ती साहब नीचे नजर आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। लेकिन बात ये है जट साहब, आपको उर्दू में बात करनी है और गाली नहीं देनी, बस दो बातें, मेहरबानी। वो उतर ही गए हैं, वो जट साहब चले गए। जट साहब वापस ले। और किधर गया जट? किधर गया जट? को ऊपर लो। जट साहब किधर गए? मुफ्ती साहब पर आपका क्या एतराज है यार? एक तो इनको ये नहीं पता कि उर्दू में बात करनी है, कहते हैं कि उर्दू की मैडम कौन सी आई हैं, तो मैंने बताया मिस रूफो हमें आके उर्दू जुबान सिखा दी। आमिर भाई इरफान जो है वो उर्दू में नहीं समझा सकते इतना मिर्जा साहब को, वो पंजाबी चीज समझा सकते हैं, उनको 2-4 मिनट ठहर सकते नहीं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर सबको पंजाबी समझ नहीं ना आती, फिर तो ये पाबंदी लगाई हुई है, बात उर्दू में करें और मिर्जा साहब की बातों का जवाब उर्दू में दें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा एतराज आप पर कर रहा है इरफान जट, कह रहा है मुफ्ती साहब ने देखो जी इनकार दी है। मैंने कहा मुफ्ती साहब नीचे आए हैं, उनको बुलाते हैं आपकी बात, लेकिन वो चले गए हैं शायद। नहीं, क्या इतराज कर रहे थे? मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, मेरे बारे में बात हो रही थी। हाँ, वो कह रहे थे कोई सूरत फातिहा की पता नहीं तफसीर आपने की है, तर्जुमा किया है, तो उसमें कोई कह रहे थे। वो तो अभी चले गए हैं, सामने होते तो चलो बात हो जाती। भाई जट साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आ जाएं, पीछे बैठ के ना सुने। मुफ्ती साहब की सीधी बात आपसे करवा देते हैं, तो पीछे बैठ के सुनने की बजाय सामने आके बात करें। देखें, जिस पर आपका इतराज हो उसके सामने बात करनी चाहिए। ये दूसरे जट साहब हैं, उनको मैं इनवाइट कर दूं। अहमद जट साहब, वो बड़े माइक वाले जट साहब आए हैं, उनको बुलाने हैं। इनके पास बड़ा माइक है जी। ना भाई, कान ना पड़वाओ साडे। अहमद जट साहब आप आ जाएं। मुफ्ती साहब पर जिस बंदे का एतराज है वो आके बात कर ले, पीठ पीछे बात ना किया करें। मुफ्ती साहब टिकटॉक पे कम टाइम देते हैं, तो हम तो इधर ही होते हैं। हमारे साथ तो जो बात आपने करनी सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब कभी कभार आते हैं तो उनके साथ जो बात आपने करनी उनके सामने करें, पीठ पीछे बातें करें। हमें किसी बात का पता ना, हम उनकी जगह क्या जवाब देंगे। फिर ये कह रहे थे कि ये असल में तबलीग, ये तालीम जो है ना, ये जमात अहमदिया की तालीम नहीं है। क्या ये तालीम जमात अहमदिया की तालीम है मुफ्ती साहब, या इनकी ज़ाती गुस्ताखियाँ हैं ये जो करते हैं टिकटॉक के ऊपर मरबी? नहीं जी, इनकी जाती है, जाती मिर्जा गुलाम कादियानी दसौंदी जो था उसकी जाती ये तालीमात हैं। इनका जो गुरु है मिर्जा गुलाम कादियानी दसौंदी, ये वो असल में करता था गुस्ताखियाँ, तो उसके ये चूंकि पैरोकार हैं तो उसकी पैरवी करते हुए ये लोग भी मजबूर हैं कि अपने पीरो मुर्शद के नक्शे कदम पर चलते। तो मेरा वादा है आपको नीचे नहीं उतारेंगे, माइक नहीं लगाएंगे और गाली नहीं देंगे तो आपको नीचे नहीं उतारा जाएगा। आज बारी बारी बात करेंगे तो क्यों नीचे उतारेंगे आपको भाई? जी जी मुफ्ती साहब,
दसबंदी नाम है कि दसबंदी है लफ्ज? वो तो ये तो लुगत बताएंगे, जट साहब ही आएंगे तो वो बताएंगे कि दसोंदी है, दसबंदी है, सुंदी है या सिंधी है। जट साहब आ जाए भाई ऊपर। बात उर्दू में करनी है, गाली नहीं देनी, माइक नहीं लगाना, बस 3 काम। हमारा वादा है, हम आपको नीचे नहीं उतारेंगे। आप इन तीनों में से कोई काम करेंगे, हम मजबूरन आपको नीचे उतार देंगे, क्योंकि हम अपनी बरात को गालियां नहीं करते। जट साहब आ जाओ, उनके स्टाम भी लिख देता है। अच्छा, ये दसबंदी नाम या दसोंदी जो आप कह रहे हैं, ये मिर्जा साहब का नाम है? जी, ये मिर्जा गुलाम कादियानी का असली नाम है जो उसके वालिदैन ने रखा था। बाद में मिर्जा कादियानी ने जब ये दावा जात अपने करने चाहे तो उसने फिर अपनी तरफ से एक अपना नाम गढ़ा था, गुलाम अहमद। तो फिर गुलाम अहमद जब मर गया तो कादियानियों ने गुलाम अहमद के साथ गुलाम को हटा के सिर्फ अहमद को छोड़ दिया। तो ये है सारा तरीका वारदात। ये असल में हिंदुस्तान में होता ये था कि जिसका कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता था तो मंदिरों के ऊपर जाके वो कोई 10 बंद बांधते थे। तो यही कुछ हुआ था मिर्ज़ा कादियानी की पैदाइश पर भी। तो इनके वालिदैन ने जो है ना वो फिर मंदिरों के ऊपर जाके 10 बंद बांधे। तो असल में 10 बंदी से वो बिगड़ के फिर नाम हो गया दसोंदी, दसोंदी से सुंदी। तो इस तरीके से ये बदलता रहा है नाम। ये मुफ्ती साहब आपने कहाँ से ली है ये वाली बात? ये सीरतुल महदी के अंदर है जनाब। अच्छा, ये लिखी हुई है जिल्द अव्वल। सफा भी चाहिए होगा तो वो भी बता दूंगा। नहीं, अगर तो मेंशन है तो फिर तो ठीक है। ये भी हैरानकुन बात है, मिर्जा साहब का वो जो एक भाई और था वो तो मिर्जा साहब से पहले था ना? हाँ जी, अब्दुल कादर, गुलाम कादर। तो गुलाम कादर के होते हुए फिर उनको ये जरूरत क्यों पेश आई कि वो मनते माने इसके लिए, मिर्जा साहब की पैदाइश के लिए? हाँ बस वो ये इनका चलता है बस। ये तो अब ये ऐसे सवाल आते हैं जो कि कादियानियों से पूछने वाले हैं। आए इरफान साहब किधर गए? जट साहब, जट साहब को मैंने जी राणा ताहिर साहब आए हैं। ऊपर आ जाए, आपके साथ हमारा जो वादा है वो हमने वादा बता दिया है। तो आप गाली नहीं देंगे, माइक नहीं लगाएंगे, उर्दू में बात करेंगे, बारी बारी बात करेंगे। आपको क्यों नीचे उतारा जाएगा? ताहिर साहब इनकी पैदाइश पर कोई रोशनी डालें मिर्जा साहब की, फिर पैदाइश हुई कब है और कैसे हुई है? राणा ताहिर साहब अपनी कोई बात करनी है, पहले राणा ताहिर साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? नज़ीर साहब ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। नज़ीर साहब एक सवाल था आपसे, बाकी मुखालफत आप सारी छोड़ दें। ये जो आपने जमात की मुखालफत के लिए एक बंदा बिठाया हुआ अपने साथ, मुफ्ती मुबशर अहमद साहिब, इन्होंने एक सूरत फातिहा की का तर्जुमा किया है उल्टा, उनसे पूछे दोबारा कर सकते हैं? अच्छा राना साहब वो तो चलो करते हैं। अभी ना एक मसला बन गया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो आपका पेशवा है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा उसका मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, मैं कादियानियों से बात कर रहा हूँ कि एक उलझन बन गई है कि जनाब मिर्जे का नाम क्या था? 10 बंदी था, दसोंदी था, सुंदी था। मैं फिर चला जाऊं? नहीं चले जाए आप, कोई मसला थोड़ी है। मैं आपकी बराड़ पे नहीं, बागना ही बहादुरी है, मुफ्ती मुबशर साहब, बागना ही बहादुरी है। मुफ्ती साहब ठहर जाए जी। हम जी साहब चला जाऊं? ठहरे, आप भी तो ठहरे ना। यहाँ रोला बन गया, मिर्जे को हम दसोंदी कहें कि सुंदी कहें, क्या कहें? तो मैं मुफ्ती साहब से जवाब लेकर देता हूँ, पहले उनको वो बात कर लेने दीजिए जो नाम वाली वो बात कर रहे हैं। मैं उनसे पहले मैंने सवाल किया कि आपने किया है, मुझे ये बताएं पहले। नहीं, सबसे पहले तो मैंने किया है ना। आपके आने से पहले यही बात चल रही थी। ये देखिए किताब ये मौजूद है, सीरतुल महदी। मैंने तो सुना था कि मेहमानों को ये नहीं, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं पेश कर रहा, मैं असली जेन्युइन बातें कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब सुनी सुनाई नहीं, और सुनी सुनाई नहीं। राना साहब आपको अपने नबी का नाम बताने में क्या सुनी सुनाई नहीं, असली असली जेन्युइन
जेनवन ए देखो ए लिखे आज ए देखो पढ़ो। सब बात हो गई उनकी मैंने आपको कहा है कि आप मेहमान हैं, आपकी इज्जत की है, आपको पहले मौका दिया बात करने का, लेकिन जो बात पहले चल रही है, पहले बात एक चल रही है उसको किसी किनारे पे लगाएं तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, कि आपकी सुननी शुरू कर दे, मेरी सुनो जी। हद हो गई है। बताओ भाई तुम्हारे जैली नबी का नाम क्या है, नाम तो पहले बता दो। हाँ जी, ये सीरतुल महदी है जनाब, सफा इसका 40 है और कादियानियों की हदीस नंबर 51 जाके पढ़ ले। चले आप पढ़ के सुना दें, क्या उसमें लिखा हुआ है? बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने नच्छो बेगम, जो कि मिर्ज़ा कादियानी की दूसरी जनानी थी। पहली को तो उसने तलाक दे दी थी बेचारी को, वो शरीफ ज़ादी थी, उसने मिर्ज़ा कादियानी को मानना नहीं था, तो उसको हुरमत बीबी को उसने बुढ़ापे के अंदर तलाक दे दी। हाँ जी, वजह इसकी सिर्फ ये थी कि उसने मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानना था, घर से ही मुनकरीन पैदा हो गए। जबकि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो मुझे मानता नहीं है वो बड़ी बड़ी गालियां उसने दी ना, डंडी का बच्चा, जुरियातुल बगाया और जनाब वलदुल हराम और पता नहीं बहुत कुछ कहा। तो ये भी एक सवाल है कि वो जो उसकी पहली बीवी थी वो भी वलदुल हराम थी कि नहीं। फिर आगे से उसके बच्चों ने भी, जो हुरमत बीबी जिसको फज्जेरी माँ कहते थे, उसकी उन्होंने भी मिर्ज़ा कादियानी को नहीं माना, वो भी वलदुल हराम थे कि नहीं, ये भी एक सवाल है। अच्छा जी, मुझसे बयान किया वालदा साहबा ने कि तुम्हारी दादी एम्मा जिला होशियारपुर की रहने वाली थी। हजरत साहब फरमाते थे कि हम अपनी वालदा के साथ बचपन में कई दफ़ा एम्मा गए हैं। वालदा साहबा ने फरमाया कि वहाँ हजरत साहब बचपन में चिड़ियाँ पकड़ा करते थे और चाकू नहीं मिलता था तो सर कुंडे से ज़िबा कर लेते थे। अब ये देखो सर कुंडा क्या होता है? ये होता ये है जी, ये पंजाब के जो छप्पड़ होते हैं या होते थे, तो उनके किनारों के ऊपर वो गंदा पानी जमा रहने की वजह से वहाँ पे कोई घास फूस उग जाती है। तो उन घासों में से एक किस्म है, वो लंबे लंबे से होते हैं पौधे, तो नेट के ऊपर भी अगर गूगल में सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो उसके वो जो है ना, उसका जो समझ ले पत्ता होता है या जो होती है वो छिलका कह ले, तो वो उसका जो किनारा होता है ना, बसा औकात जब वो पौधा बूढ़ा हो जाता है तो यानी वो बहुत तेज हो जाता है, ऐसे द्रांति की तरह। तो अब मिर्ज़ा कादियानी को छुरी मिलती नहीं थी, तो उसके साथ आप देखें, ये वो है कि जिसने कल नबूवत का दावा करना है, बचपन के उसके हालात देख लें कि जालिम तरीन इंसान, जुल्म की इंतहा है, जानवरों के बहुत हकूक हैं और जानवरों के इतने हकूक के कहा कि जब फैसले का दिन होगा वो जानवर इंसान से पूरा पूरा हक लेगा, पूरा हक लेगा। और जानवर को ज़िबा करने का असूल और दस्तूर शरीयत के अंदर वज़ा है कि इस तरीके से ज़िबा किया जाए कि उसको तकलीफ ना हो। अभी ये कुर्बानी के दिनों के अंदर भी उलमाए कराम बयान करते हैं कि किस तरीके से उसको लटाना है, किस तरीके से छुरी चलानी है, किस तरीके से खाल उतारनी है, जब जान निकल जाए तो फिर आराम से खाल उतारनी है। तो मतलब ये कायदे ज़ाब्ते मौजूद हैं, जानवरों के बड़े हकूक हैं। अब वो देखे चिड़ी को पकड़ के, चिड़िया को पकड़ के वो सर कुंडे से ज़िबा कर रहा है, उस जानवर को, उस चिड़िया को कितनी तकलीफ होती हो, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मिर्ज़ा कादियानी ये बचपन में करता था और चाकू नहीं मिलता था तो सर कुंडे से ज़िबा कर लेते थे। वालदा साहबा ने बयान किया कि एक दफ़ा ईमान से चंद बूढ़ी औरतें आईं तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि सुंदी
हमारे, अब ये सिंधी है या सुंदी है ये कोई कादियानी बताएगा, हमने नहीं बताना, क्योंकि यहाँ पे कोई जेर जबर नहीं लगी। अब हम तो आज़ाद हैं कि अब सीन के ऊपर पेश पढ़ें या सीन के नीचे जेर पढ़ें, या तो कोई कादियानी आके हमारी ये लुगत सेट करवा देना। तो सुंदी हमारे गांव में चिड़ियां पकड़ा करता था। सीन के आगे नून है, सीन के आगे नून है कि सीन के आगे वाव है? सीन के आगे नून। अच्छा, सिंधी जिस तरह लिखा है। हाँ, सिंधी, वो सिंधी की तरह ही लिखा हुआ है। अच्छा जी, वालदा साहिबा ने फरमाया, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। किसी भी चीज की असल जाननी हो ना तो कहा जाता है कि गांव से पता करो। किसी चीज की भी असल जो लुगत होती है, जुबान, वो शहरों से नहीं सीखी जाती बल्कि गांव से सीखी जाती है। और गांव की भी जो खवातीन होती हैं ना, वो ठीठ जुबान जो होती है उन्होंने संभाल के रखी होती है। अब भले अरब कंट्रीज के अंदर चले जाएं, अंग्रेजों के मुल्कों में चले जाएं, यहाँ पाको हिंद में चले जाएं, तो जो गांव गोट होते हैं ना, वो असल जुबान वहां पे होती है। और उनके भी मर्द नहीं बल्कि औरतों के अंदर होती है असल जुबान आपको मिलेगी। और असल तरीशी हकायक वहां गांव से मिलते हैं। असल चीज जो होती है, पुरानी चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। यहां पर भी वो पुरानी औरतें आती हैं जो बचपन में जिन्होंने मिर्जा कादियानी को देखा था, वो आई हैं। वो आके कह रही है कि सुंदी कहां पे है। अगर मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम गुलाम अहमद होता तो उसको वो गुलाम अहमद करके बुलाती, वो सुंदी ना कहती। समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, सुंदी हमारे गांव में चिड़ियां पकड़ा करता था। वालदा साहबा ने फरमाया कि ये आपकी रहनुमाई कर देंगे। ये बड़े पुराने कादियानी दोस्त हैं हमारे, अब्दुल्ला यूसुफ इन्होंने नाम लिखा हुआ है, लेकिन असली नाम इनका हकीम राशिद है। ये आपको बता देंगे कि वो लफ्ज जो है सिंधी है कि सुंदी है, सुंदी है। इनसे पूछ लीजिए जी। हकीम राशिद साहब है जी। हाँ, हकीम साहब। हकीम तो वैसे भी वो इन चीजों में मशहूर हैं। हकीम साहब, ये लफ्ज है एक मिर्जा कादियानी का असली नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको सिंधी पढ़े कि सुंदी पढ़े। इसके हरूफ क्या हैं? सीन, नून, दाल, है, दो चश्मी ते ये। तो जाहिर है सिंधी होता है। हाँ, सिंधी। तो मिर्जा कादियानी का असल नाम सिंधी था? नहीं, सिंध से उनका क्या तल्लुक है? मिर्जा साहब का सिंधी कैसे हो सकता है? नहीं, वो जब फातमी बन सकते हैं, दूसरा ना पौंके। जब वो फातमी बन सकते हैं मुगल होके, तो वो सिंधी बनना कौन सा मुश्किल है? पंजाबी से सिंधी, तो सिंधी से पंजाबी, वो कोई टेंशन नहीं जी। हकीम राशिद साहब ऐसा ही है। अरूफ तुसी पढ़ लेने ना जी जी। अगो ताड़ी इतनी समझ नहीं है कि लफ्ज सिंधी है। अच्छा, सिंधी है, ठीक है, ठीक है। बहुत लो सिंधी जी, है। लो बस इतनी बात थी। आमिर नजीर साहब की कटना की चाहते हो? कोई नहीं कटना चाहते। आमिर नजीर साहब, आपको समझ आ गई? अब ये सिंधी लफ्ज है, सुंदी नहीं है। बात समझ आ गई है। चीनी भी हैं, फारसी भी हैं, पंजाबी भी हैं, अब सिंधी भी हैं। हाँ जी, सिंधी भी हैं। ठीक हो गया जी। उन्होंने एक और शेर सुन लो। सिंधी भी मैं कभी मुंह बंद करो। शेर सुनो जी। शेर सुनो। मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। अच्छा, तो एक शेर ही याद सी मिर्जे दा, भी तुसा गलत बोले। तो अपने मिर्जे दा शेर भी नहीं सही होंदा। नहीं, गलत तुसी कह रहे हो, गलत मैं सही पढ़े। चलो दुरुस्त करो, फिर करो दुरुस्त, पता चलता है। अच्छा, चलो, साडा है मौजू नहीं है। इधर पढ़ लीजिए अगे। मिर्जा साहब, मैं बयान करदा मुफ्ती साहब, मैंने आधा मिनट दे दो। दोवां दी जवाब मैं आधा मिनट 3 सेकंड। तुसी शेर चवड़ा ना मारो, चवड़ा ना मारो। गल है वे हकीम साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अगर कहा ना बड़े वसूक नाल गल कही है, समझ आई कि नहीं? दी गल नहीं, दुरुस्त करो ना फिर। चलो, आमिर नजीर साहब कर देने फिर दुरुस्त जी। मैंने पहले दुरुस्त कर लें दो, फिर मुफ्ती साहब ट्राई कर ले। गल ये है नहीं दुरुस्त यमन का इलाका सी ना,
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਯਮਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਟੂ ਦੀ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਜਰਾ ਹਮ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਮਿਊਟ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਵੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਯਮਨ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਕੀਮਰਾਸ਼ ਸਰ, ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਵਾਂ, ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਕਨਾਨਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਚਵੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਗਧੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਧੇ, ਆਪਣੀ ਚਵੜ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਪਿਓ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਖਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਫਤੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢੋ? ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਿੰਧੀ ਸੁੰਦੀ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਰ तो चलो जी ओए अच्छा जी भाजी अच्छा जरा ओ यार साह भी तो लवो जरा बोलन भी तो दियो की तरह चवल ना मारो तुम भी बोलने तो दो यार। हकीम राशिद क्या हो गया, बोलने तो दो। अच्छा मुझे बताएं ये शेर कहाँ पे लिखा हुआ है? बेवकूफ बंदे तुसी। वो शेर कहाँ पे लिखा है? तो आपने जो बोला है ये शेर कहाँ पे आपने पढ़ा है? मिर्ज़ा कादियानी का ये शेर। एवी मैनू क्या सी कि झूठ है? ओ चले बताएं, आप बता दें। नहीं एवी मैनू क्या सी कि गलत यार चल कोई नहीं, ओ भाई माफी दे दियो, गलती होगी साडे कोल यार, गलती हो गई है। हाँ चले, ये कहाँ पे पढ़ा है आपने? अगले आगे कर गल तेनू वो बताएं तो सही ना यार, शेर बता दें कोई। माफी मंगण वाला तू बंदा है, तेनू माफी मंगण लगा की हुंदा है? कुछ नहीं होता। तू माफी तो तेरी और चलो शेर चले दोबारा बोले जी, शेर दोबारा बोले चले। मैं दोबारा नहीं बोलना, इको बारी बोल रहा। वो बोले तो सही यार, क्या हो गया? आपके अपने मिर्जे का शेर है, बोले। तेरा पाबंद है, घटिया बंदा है तू, तेरे में पाबंद है, दोबारा बोला। टीम साहब साडे सामने नु आके बोल दो खोती दे उपरों तुसी कर रहे हो ना। हकीम साहब पढ़ो, हकीम साहब मुकर्रर शेर पढ़ो, शेर पढ़ो। चल तू गधे, तू चुप कर गधे। अभी तो गांड मुरवा रहे हो, तुम भी तो गांड मुरवा रहे हो। इस तरह की बात नहीं करनी यहाँ पे यार, गंदी बात नहीं। अभी तो आप भी गांड मुरवा रहे हो खोते। अच्छा हकीम साहब छोड़े यार, चले भाई सारे ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਿਚ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਸੂਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤੇ ਹਮਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਹਮਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਟਿਆ ਨਸਲ ਦੇ ਖਬੀਸ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ
ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। हकीम राशिद साहब गुस्ताखे मिर्जा हैं, ये देखें सबूत है हमारे पास। तेरी मां का भी मैं गुस्ताख हाँ, कुत्ती दिया पुत्रा। ये देखिए हमारे पास सबूत है। तेरी मां का भी गुस्ताख हाँ। मिर्जा साहब कहते हैं गालियां खा के, गालियां सुन के दुआ दो। ਹਕੀਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਲਾਂਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ आया। हकीम जी मैंने कोई आपको कोई गाली दी या हमारे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन में से किसी एक ने आपको गाली दी हो? आपने चवले मारी हैं। नहीं, किसी एक ने कोई गाली आपको दी है तो बता दे कि भाई फलाने गाली। मैं गाली की बात नहीं कर रहा, चवलों की बात कर रहा हूँ। खच्चे मार रहे हो तुम। अच्छा वैसे हकीम जी एक बात बताएं, आप लोगों का मिर्जा कादियानी समेत सारी जमात ही गाली निकालती है, ये क्या आपको गालियों की बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है? तू तो हदीसें पढ़ता है ना, तू आयतें पढ़ता है कुरान करीम की। तूने सूरह फातिहा का तर्जमा क्या किया बेगैरत कुत्ते? मैं लगाऊं सूरह फातिहा का तर्जमा जो तूने किया है हरामजादे? अच्छा अभी ना तर्जमा नहीं लगाऊं तर्जमा? सुने हकीम जी एक मिनट, सीरत नबी भी मेरे सामने खुली है, वो खुली की खुली है। ये आपने जो शेर बोला था वो भी मैंने खोल के रख लिया, वो भी खुले का खुला ही है। मतलब किसी चीज पे आप बात सूरह फातिहा का तर्जमा पे तेरा लगाना। हकीम जी साहब ही तो लगो छुरी थल्ले साहब ही तो उत्ते गंद बोलिया। हकीम जी साहब ही तो लेईदा हुंदा ना जी, तुसीं बोलन ही नहीं देंदे। मैं तेनू साथ दिलाना। अच्छा चले, अच्छा जी चलो ये हकीम जी थोड़ा सा माइक म्यूट करें यार। यूसुफी भाई इनका अगर कंट्रोल है आपके पास तो थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल करें, तो ताकि ये सुंदी सिंधी वाला मामला आगे बढ़ाया जाए। सुंदी सुंदी तेरा मामला मैं वाड़ छड़े तेरे, तेरी दुब्बर च वाड़ छड़े मैं तेन वो छड़ दे हूं। ठीक होगी सही सही। अच्छा जी आगे सुने जी। आखिर मालूम हुआ कि इनकी मुराद हजरत साहब से है। वालदा साहबा फरमाती थी कि दस्तूर है कि किसी मन्नत मानने वाले के नतीजे में बाज लोग खुसूसन औरतें दुरुस्त ना कीता मैं तेनू छड़ना नहीं। ठीक ठीक है, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो, कर लेने दुरुस्त। तेनू मैं शेर ना तेनू ओथे वाड़ना जिथों तू निकलिया है। यार इन्हां दा माइक म्यूट करो, मैनू इधर कंप्लीट कर लैन दिओ। वो करन देंदे ही नहीं पे, हत्थी कहंदे पे माइक दे। हकीम राशिद साहब बारे में गल करो ना प्लीज। गल कर लैन दिओ सानू, इधर पूरी ते कर लैन। तुहाडे मिर्जा जी दी गल है ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? अच्छा चलो ठीक है, सानू गल कर लैन दे। तुहाडे मिर्जा जी दी गल है, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ मैं मिर्जा कादियानी खंजीर दी करना ते पिया मैं गल। की मसला है तुहानू? मसला खंजीर दी गल करते रहा वो तो सुनो तो सही। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਖਾਦੂ ਲੰਗੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। यार माइक इन्हां दा म्यूट करो यार। लंगड़े कुत्ते दी गल कर, खादू लंगड़े कुत्ते दी गल कर। पेश नहीं पे जान देंदे। पेश ही नहीं जान, बंदा बोलन ही नहीं देंदा पिया यार, बंदा गल ही नहीं करन देंदा। चलो गल कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा जी, अच्छा तो किसी मन्नत मानने के नतीजे में बाज लोग खुसूसन औरतें अपने किसी बच्चे का उर्फ सुंदी रख, बल्कि सिंधी, ये इन्होंने करेक्शन करा दी, सिंधी, तो सिंधी रख देते हैं चुनाचे। अच्छा मैनू ये दस तेरा नाम मोची किने रखा है? इसी चुनाचे इसी वजह से आपकी वालदा और बाज औरतें नाम मोची किने रखा है? आपको भी बचपन में कभी इस लफ्ज से पुकार लेती थी। तेरा नाम मोची। खाकसार अर्ज करता है कि सिंधी गालबन दसोंदी और 10 बंदी से बिगड़ा हुआ है। अच्छा ये थोड़ा सा रोला यहाँ पर भी पड़ गया है हकीम साहब। मोची खंजीर दसोंदी है, दसबंदी है। खंजीर मोची खंजीर, ये दसोंदी है लफ्ज के दसबंदी है। मोची खंजीर। अच्छा मोची खंजीर है।
अच्छा अच्छा लो जी, ये दसौंधी से मुराद है मोची खंजीर। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि मोची खंजीर मतलब है। मोची खंजीर नाम है जी जी ठीक है। मैं मुबशर मोची खंजीर ठीक मुबशर अच्छा जी, मोची खंजीर दसौंधी से मुराद है मोची खंजीर ठीक ठीक। मुबशर मोची खंजीर। अच्छा मिर्जा कादियानी का नाम मुबशर भी है ठीक। मुबशर मोची मुबशर खंजीर। हाँ वो उसने अपने जो 99 नाम लिखे उसमें मुबशर भी लिखा है उसने कि मैं मुबशर मुबशर। मोची खंजीर। अच्छा मोची मुबशर मोची खंजीर। ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा मिर्जा कादियानी गश्ती दा पुत्र ठीक है भी है सही ਹਾਏ है। ਹਾਏ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤੀ ਕੰਜਰਾ। अच्छा नहीं आप बता रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता था। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੇਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੇਲਾ ਬੋਂਡ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ठीक है ਬੋਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇਲਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੇਲਾ। ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? बड़ी तबलीग हो गई। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਝੰਬ ਲਾਣ ਡਿਆ ਬਗੈਰਤ ਦੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝੰਬ ਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਲੀਲ नहीं ਓਏ आमिर भाई गाल ते नहीं है करदे पे है ते मिर्जा साहब दा नाम ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਤ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ मिर्जा साहब दा नाम दस रहे ने कि दसौंधी तो मुराद है मोची मरासी खंजीर। मुबशर मोची मुबशर मोची मरासी खंजीर मिर्जे दा नाम है जी दसौंधी तो मुराद है। ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ नहीं ते मिर्जा कादियानी दा नाम नहीं सी मुबशर। तो भौंक ले जिन्ना मर्जी भौंक ले। नहीं मिर्जा खुद कहंदा मेरा नाम मुबशर भी है। मुबशर भी है तो तेरे किन्ने को नाम ने? तेरा सूअर अजे हुण तुसां शेर भी पढ़िया वे ना कि नस्लें हैं मेरी बेशुमार। बरेलवी ये एमडी हो ही नहीं सकता। जिस तरह की ये जुबान यूज करे ये एमडी हो ही नहीं सकता। ये जो नहीं नहीं नजर साहब यही तो पक्के अहमदी हैं। अहमदी की निशानी होती है वो गालियां निकालता है। ये गालियां दे रहा है ये बंदा। आप भी प्लीज मेहरबानी पक्का अहमदी की निशानी ये होती है कि वो गालियां देगा। जब गालियां देगा तो समझ जाए कि पक्का अहमदी है। अगर गालियां ना दे तो फिर उसके अहमदी होने में शक है। पंगड़ा तेरी मां दे उत्ते पाए पंगड़ा खादू लंगड़ा है खादू लंगड़ा तड़ियां मावां दे उत्ते चढ़ के पाए पंगड़ा। अच्छा उन्हां दा एक नाम खादू लंगड़ा भी है सी मुफ्ती साहब ये भी याद। बड़े नाम आज ते बड़े नाम सामने आ गए। और जेड़ा तेरी मां दे उत्ते चढ़दा सी। अच्छा 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 हां हुन पता लगे सही सही हो। खादू लंगड़ा कौन सी? जमाती अहमदिया दा जेड़ा तरीका तबलीग दा। आए आए और तू ते खंजीर है, तेनू ते तबलीग दी लोड़ ही को नहीं। तू तो है ही खंजीर आमर खंजीर। आमर खंजीर तू तो है ही खंजीर। वाबी लांती कुत्ती दा पुत्र वाबी वाबी है ओए वाबी लांतिया तेरी और माइंड रोज तेरी सही होने वाबियां नु आजकल तुन के रखया है। तुन के रखया है वाबियां नु। अच्छा वैसे हकीम साहब तुन के रखो। ओए एक मिनट ओ वाबी ओ एक मिनट ओ अच्छा मिर्जा वाबियां नु बरेलवियां नु तुन के रखो। हाय 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 वाबी बरेलवी कुत्ते वाबी की ओनु कहंदे ने बेहया। अच्छा आज सोमवार कल एतवार सी शाम नु वाबियां नु तुन के रखो। वाबियां नु ओ अमीर सलीम कहंदा वाबियां नु तुन के रखो। ओ तेनू ते ओ खंजीरा तेनू ते अमीर सलीम ने तुन के रख छड़या है। सब की खा पी लिया जे रात दा। नहीं अमीर सलीम ने तेनू तुन के रख छड़या है। मैं तेनू अमीर सलीम दी सुनावा। मैं कहना तुसां रात दा की पीते है? मैं वही पीता जेड़ा अमीर सलीम कोलों सुनया। दवाई पीती जे? नहीं ओही जेड़ा मैं तेनू हुण दसन दिया अमीर सलीम दी जुबानी सुन। है ते बंदा जिस तरह गालां कड्डे फिर बंदे कहंदे ने ड्रंक के होश च नहीं ने दवाई पीती। आहो तेरी मां दे नाल रल के पीती मैं दवाई। ओहो ओने टानक पाइन सी जेड़ी मां दे नाल रल के पीती सी। तेरी मां दे नाल तेरी बुढ़ी दे नाल तेरी कुड़ी दे नाल तेरियां भैणां दे नाल रल के मैं पीती है। मावां दा क्यों गालां कड्डदे हो? अपना की नाम तुहाडा? ओए खंजीरा तू है ही खंजीर। ये अब्दुल्ला मुझे अहमदी लगता ही नहीं है। ये मुझे लगता है ये बगैरत कितनी हजरत मसीह को गालियां निकलवा रहा है। आपको शर्म नहीं आती? पुत्रा विच केड़ा आ गया भैन चोदा?
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ यार ये नहीं तू ये केड़ा आपके विच आ गया बहन चोदा तू विच कित्थों आ गया ओहो है? बहन अपने चोदा। अहमदी कोई गालियां निकाल रहे हैं आप ऐसे तो ना करें नहीं ए विच मां चिदवान आउंदे ने विच बाकी तो अपने अहमदी को ही आप गालियां शर्म निकालें नहीं आ रही, आप हजरत मसीह मसीह को गालियां निकलवा रहे हैं। शर्म करें तू आप, कौन है बगैरत कुत्ते तू कौन है? तू अहमदी है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप नहीं। बुजुर्ग लगते हैं और कुत्ते तू अहमदी है? हम मसीह मौत को गालियां पढ़वा रहे हैं। नहीं तू कुत्ता है अहमदी है तू। तू अहमदी है। और बहन चोदा तू कित्थों अहमदी हो गया है?